Hello everyone, welcome to the next class of wildlife, which is probably going to be our last lecture of the course. Or what we have been discussing was about the methods of wildlife sampling, in which we discussed about some transect surveys and other science surveys, different methods of estimating the absolute density. So आज जो हम अपने टॉपिक को प्रोसीड कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट वन ऑफ द sampling techniques of wildlife, which is the most cutting edge, the most advanced technique, most non-invasive technique, which is the most important point, that it doesn't deal physically with animals, rather it is one of the most non-invasive techniques in which there is no harm imposed upon the wildlife. Camera trapping, as its name indicates, is a technique in which the modern camera technology is introduced. और जितने भी हमने मेथड्स पढ़े पिछले कुछ लेक्चर्स में, वही मेथोडोलॉजीज़, वही either that will be a grid study, a grid based, a quadrate study, or it may be a transect study, whatever the study design may be. Camera trapping is just a data collection tool which can be implemented in either of the research methodologies or sampling surveys which we have discussed. Either that will be a quadrate study or a transect based स्टडी. जितने भी हमने उसके टाइप्स पढ़े वो डिपेंड करता है रिसर्च क्वेश्चन पे एंड स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है. सिमिलरली कैमरा ट्रैपिंग स्टडीज़ कोई अलग साइंस नहीं है, ये कोई अलग मेथड नहीं है, ठीक है. ये वही वाइल्ड लाइफ सैम्पलिंग टेक्निक में एक टूल है विच इज़ यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन, बट इट इज़ एडवांस्ड. It has manifold advantages as compared to other classical methods. So इसके अंदर जो साइंस है वो इंटरेस्टिंग है. It's emerging, it's evolving, और इस टेक्निक में रोज़ बरोज़ जो है वो एक हमारे पास नए फैक्टर्स सामने आ रहे हैं, नई स्टडीज़ जो है कंडक्ट हो रही है और डिफरेंट उसमें चीज़ें सामने आ रही हैं. So in order to introduce you with this technique, let's kick off with today's topic. और उसमें हम थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करते हैं. So what is camera trapping? Camera trapping is the use of remotely triggered cameras that automatically takes images and or videos of animals or other subjects passing in front of them. This tool is widely used across the globe, especially to study medium to large terrestrial mammals and birds, arboreal mammals, small mammals, and herpetofauna, which means reptiles as well. So a wide variety of wildlife can be sampled with this technique. ये जो references आप देख रहे हैं, basically these scientists have conducted studies of camera traps on these particular group of animals. Over the last 10 years, and in particular since 2006, there has been a substantial growth in the number of published camera trap studies. Camera trapping, as we know, it is evolving, और ये एक as a scientific tool के बेस पे अभी इमर्ज हो रहा है, ठीक है. और अगर हम ये ग्राफ देखें, सो literature published with camera trapping studies, it indicates that it has been in use in wildlife studies since 1994, but the use is very low. क्योंकि जो पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं वाइल्ड लाइफ रिसर्चेज में, तो उनमें जो कैमरा ट्रैप स्टडीज़ के हवाले से पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, तो उनका ग्राफ कुछ यूँ है कि इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग एंड इवॉल्विंग एंड इट हैज़ बीन यूजिंग it has been used in wildlife studies
1994 से लेकर 2013 तक ये ट्रेंड आप देख रहे हैं कि इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो कि पहले ऐसा नहीं था। क्लासिकल मेथड्स यूज़ होती थी, जैसे हमने पिछले मेथड्स जितने भी पढ़े 2 लेक्चर्स में, वो मोस्टली दे आर बेस फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़, लेकिन उनमें ये मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ नहीं होते थे, वो सिंपली काउंटिंग सर्वेज होती थी। यहाँ पे इसके मल्टीपल हमारे पास, इट्स नॉट जस्ट अबाउट काउंटिंग एनिमल्स और capturing animals as documented evidence, but it deals with a wide variety of analysis techniques, जिसमें हम एक ही सैम्पलिंग एरिया से, एक ही सैम्पल से हम मल्टीपल एनालिसिस रन कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ में, जो कि हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। एनी हाउ, लेट्स proceed with the types of camera traps. Basically कैमरा ट्रैप्स के हमारे पास 2 बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है, और उनमें डिफरेंस किस बेस पे है, वो एक बड़ा डिफरेंस है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। सो ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड कैमराज टेकिंग फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ ऑफ passing animals have emerged over the last decade as one of the most powerful tool for wildlife research। वही कैमरा ट्रैपिंग के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्टरी चीज़ है, वो हम पिछले स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया। दोनों में चीज़ कॉमन ये है कि दे आर ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड, यू डोंट नीड टू सिट देयर, नो वन नीड टू सिट देयर इन द फॉरेस्ट और के एनिमल आएगा और उसको आप ट्रिगर करोगे, दे आर ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड, ठीक है। और ऑटोमेटिक ट्रिगरिंग में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इज़ द बेसिस ऑफ कैमरा ट्रैपिंग टेक्निक, और उसमें बेसिकली 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 एक्टिव इंफ्रारेड कैमरा ट्रैप्स एंड पैसिव इंफ्रारेड कैमरा ट्रैप्स। क्या डिफरेंस है, क्या एप्लीकेशन है दोनों की, वो हम अभी पढ़ते हैं। ओके, वेरी सिंपल। एक्टिव इंफ्रारेड कैमरा ट्रैप्स वो कैमरा टेक्निक्स है जो कि विद इन द कैमरा ट्रैप टेक्नोलॉजी, जो पुराना मेथड कैमरा ट्रैप्स एज अ होल इमर्ज हुए फ्रॉम 90s, बट उनमें जो फर्स्ट यूज़ होते थे दे वर नॉन एज एक्टिव इंफ्रारेड कैमरा ट्रैप्स। और उसमें बेसिकली होता क्या था कि 24/7 जब आप उस ट्रैप को इंस्टॉल करते थे तो एक एक्टिव बीम ऑफ इंफ्रारेड वो एक्टिव होती थी थ्रू आउट द टाइम। जितना भी कैमरा डिप्लॉयमेंट टाइम होता था, जितने टाइम के लिए आप कैमरा इंस्टॉल करते थे, तो उसके साथ वो इंफ्रारेड बीम एक्टिव रहती थी, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या है, द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कैमरा ट्रैप्स इन 1980s वर जीनॉन वाइट फ्लैश सिस्टम। जीनॉन एक केमिकल है जो कि वाइट फ्लैश सिस्टम में यूज़ होता है विद सर्किटरी सेपरेट टू द कैमरा। तो जो फ्लैश है यहाँ बेसिकली होता क्या है कि एक्टिव इंफ्रारेड में कैमरा अलग होता है, इंफ्रारेड बीम प्रोड्यूस करने का डिवाइस अलग होता है, और फ्लैश सिस्टम अलग होता है जो लाइट प्रोड्यूस करता है इन ऑर्डर टू कैप्चर अ ब्राइट पिक्चर। 3 अलग अरेंजमेंट्स, कैमरा अलग, इंफ्रारेड डिटेक्टर, इंफ्रारेड सोर्स अलग, और जो है फ्लैश, जीनॉन वाइट फ्लैश जो कि वो अलग। तो 3 डिफरेंट चीज़ें अलग अलग इंस्टॉल करनी पड़ती थी, तो एक डिफ़िकल्ट अरेंजमेंट होता था। और उसमें ये था कि जो एक्टिव डिवाइस है इंफ्रारेड की, वो एक्टिवली बीम को क्या करती थी, प्रोड्यूस करती थी, और जो कोई एनिमल उस एक्टिव बीम को पास करता था, उसको ब्रेक करता था, तो वो कैमरा ट्रिगर हो जाता था एंड फ्लैश भी उसके साथ ट्रिगर होके, तो फ्लैश and camera were triggered by the infrared beam which was active. These systems required the camera trap and the triggering device to be separate to one another and required the infrared beam to be broken by an animal passing through the beam, thus triggering the camera to take a photo. अच्छा, basically तो अलग अलग अरेंजमेंट, और एनिमल जब उसको ब्रेक करता था उस बीम को, तो कैमरा और फ्लैश अलग अलग एक्टिवेट एक टाइम पे हो जाते थे। और इसी तरह से ये कैमरा ट्रैप वर्क करता था। ये आज भी यूज़ होता है, बट ऐसा नहीं है कि अब ये मेथड यूज़ नहीं होता।
अभी भी यूज़ होता है। इसकी एडवांटेज क्या है कि आजकल भी यूज़ हो रहा है? एडवांटेज इसकी इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये कलर्ड फ़ोटोग्राफ, रात को भी कलर फ़ोटोग्राफ आपको देगा। मोस्टली जो हमारे पास एल्यूसिव और इंडेंजर्ड और जो हमारे पास रेयर एनिमल्स हैं, दे आर नॉक्टर्नल, मोस्टली नॉक्टर्नल होती हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल कार्निवोर्स इन पर्टिकुलरली, दे आर मोस्टली नॉक्टर्नल। तो आपको कलर्ड इमेजेस के लिए ये टेक्निक जो है वो हेल्पफुल है। बेसिकली इसमें होता क्या है, हमने एक रियल पिक्चर देखी, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन है कि हाउ टू इंस्टॉल एक्टिव इंफ्रारेड। तो बेसिकली होता क्या है कि जो डॉटेड लाइन है, इट शोज़ द ट्रैक ऑफ द एनिमल, ठीक है। एक्टिव गेम ट्रेल, गेम का वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा वाइल्ड लाइफ में, इट मीन्स एनिमल्स। सो यहाँ से एनिमल्स पास ऑन होते हैं जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट हेयर देयर आर ट्रीज़। सो आप एक ट्री, ऑब्वियसली जो डेंस फॉरेस्ट होती हैं तो उनमें ट्रीज़ डेंसली मौजूद होते हैं। सो यू नीड टू इंस्टॉल 2 फ्लैश लाइट्स, ठीक है। रिमोट सेंसर आप प्लेस करेंगे इस ट्रैक के नज़दीक, ठीक है, कि ये परपेंडिकुलरली उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा एनिमल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेंशन है, दिस इज़ द रिमोट सेंसर, प्रेशर पैड बीम मोशन सेंसर। तो एक्टिव इंफ्रारेड मोशन सेंसर यहाँ इंस्टॉल होगा इस रास्ते में, इस ट्रैक पे, ताकि एनिमल गुजरे तो इसको ब्रेक कर सके इस बीम को। तो उस बीम ऑफ इंफ्रारेड लाइट दैट विल बी ट्रिगर्ड, दैट इज़ कनेक्टेड टू कैमराज एंड फ्लैश लाइट्स, ठीक है। तो जब कोई एनिमल आके इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे फ्लैश ट्रिगर होगा और कैमरा विद रिमोट ट्रिगर एंड वायरलेस फ्लैश कंट्रोलर माउंटेड टू प्लेटीपोड मैक्स एट रफली आई लेवल विद एक्सपेक्टेड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे पोटेंशियल साइड पे आपने इसको फिक्स किया होता है इस कैमरे को। वो कैमरा कोई भी हो सकता है, DSLR, मॉडर्न कैमराज भी हो सकते हैं। पहले पुराने कैमरे यूज़ होते थे, आजकल DSLR इसके साथ कनेक्ट होता है। तो कोई भी कैमरा किसी भी रिमोट सेंसर और इंफ्रारेड बीम प्रोड्यूसर के साथ कनेक्ट होता है थ्रू वायर्ड, जो कि यहाँ पे छुपा के इसको कनेक्ट किया जाता है। इसी तरह ट्रीज़ में जो फ्लैश लाइट रेंज है, सो ऑल दीज आर ट्रिगर्ड। सो दिस सेटअप इज़ एक्टिव इंफ्रारेड, और जिसमें ये 3 चीज़ें, मैं आई एम रिपीटिंग, कैमरा, फ्लैश लाइट एंड इंफ्रारेड बीम, दे आर सेपरेट एंड दे आर इंस्टॉल्ड एज अ पैकेज एंड दे वर्क लाइक दैट। और एडवांटेज इसकी ये है कि इट गिव्स यू कलर्ड फोटोग्राफ्स इवन इन द नाइट टाइम, ठीक है। जितना आपका कैमरा फिर अच्छे क्वालिटी का होगा तो उतने ही पिक्सेल्स क्लियर होंगे, बट जो फ्लैश लाइट और कलर कैमरे के अलग अलग होने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे LED फ्लैश लाइट, ये जीनॉन फ्लैश लाइट है, और कैमरा अलग है, तो आपको रात को भी कलर इमेजेस प्रोड्यूस करेगा। सो सेकंड टाइप ऑफ द कैमराज इज़ पैसिव इंफ्रारेड कैमरा ट्रैप्स। Okay, now this is interesting. This is the most advanced form of camera traps, जो पिछले कोर्स में हम इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर चुके थे। ये आपने देखे हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के आते हैं जो मोस्ट फेमस है, दे आर रेकोनेक्स, हाइपरफायर, ठीक है। पैसिव क्यों कहते हैं इसको? इसके एडवांटेजेस में ये है कि जो पैकेज, जो अरेंजमेंट्स आपको 3 डिफरेंट सेटिंग्स में करनी पड़ती थी, फ्लैश लाइट, कैमरा एंड इंफ्रारेड सेंसर, वो सारा एज अ पैकेज एक ही कैमरे के अंदर, एक ही अरेंजमेंट में, एक ही डिवाइस के अंदर वो सारा कुछ फिट है। यू डोंट नीड एक्स्ट्रा फ्लैश लाइट, यू डोंट नीड एक्स्ट्रा इंफ्रारेड सेंसर, यू डोंट नीड एन एक्स्ट्रा कैमरा, you just need this box like setup in which camera, infrared beam and motion sensor and infrared device is installed. Okay, इसमें क्या है, सेल्फ कंट्रोल पैकेज इंक्लूडिंग सेंसर एंड कैमरा। सेंसर कैमरा ये मैंने आपको बता दिया, आप टेक्स्ट को रीड कर लें, नो नीड टू रिपीट दैट। यहाँ पे पैसिव इंफ्रारेड सेंसर का क्या मतलब है? ये मतलब है कि पिछले मेथड में ये होता था कि ये
रिमोट सेंसर, ये जो इंफ्रारेड बीम होती थी, ये बेसिकली एक्टिव रहती थी थ्रू आउट द टाइम। यहाँ पे इन ऑर्डर टू कंजर्व एनर्जी एंड बैटरी लाइफ, यहाँ पे इंफ्रारेड बीम जो है वो एक्टिव नहीं होती, वो पैसिव होती है। जब कोई एनिमल आगे से मूव करता है तो ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इसमें इंफ्रारेड फ्लैश होता है, वो फ्लैश लाइट जो कि लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, फ्लैश प्रोड्यूस नहीं करता, वो इंफ्रारेड एक साइलेंट टाइप का फ्लैश होता है जो कि रात के टाइम भी विजिबल पिक्चर देगा, कलर पिक्चर नहीं देगा लेकिन विजिबल होगा। तो एक डिसएडवांटेज ये है कि ये आपको कलर फोटोग्राफ नहीं दे सकता रात के टाइम। दिन को कलर फोटोग्राफ देगा, रात को कलर फोटोग्राफ नहीं दे सकता। लेकिन एडवांटेज ये है कि सब कुछ उसके अंदर मौजूद है, एक ही कैमरे के अंदर, एक ही सेटअप। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ये बहुत एडवांटेज है, इसका पता फील्ड में जाके चलता है। जब आप ज़्यादा कैमरा इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक ही कैमरा फिक्स करो एंड दैट्स इट। अगर ऐसा ना होता तो फिर आपको फॉर एग्जांपल 30 स्पॉट्स पे लगाने होते, 30 स्पॉट्स पे फिर आपने हर स्पॉट पे वो 3 अरेंजमेंट्स अलग अलग इंस्टॉल करनी पड़ती। सो इंफ्रारेड कैमरा यूज rays of LEDs, light emitting diodes that emit infrared light mostly in the range of 700 to 1000 nanometer। और ये आपको किस टाइप की पिक्चर्स देता है? लाइक दिस। रात के टाइम आपको पिक्चर क्लियर देगा, बट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यू डोंट नीड एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स एंड दैट पिक्चर विल बी ब्लैक एंड वाइट। सो दैट्स काइंड ऑफ, आप इसको डिसएडवांटेज, इतनी बड़ी डिसएडवांटेज नहीं है, बट कुछ स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन में फिर प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से। डिटेक्शन जोन क्या है? डिटेक्शन जोन वो पिक्चर का वो एरिया जो आपको नज़र आता है और इसमें कैमरा जो है एनिमल को डिटेक्ट कर सकते हैं, बट इट्स नॉट दैट सिंपल कि जो पिक्चर का एरिया है तो वो सारा। अब हम इसको पढ़ते हैं। सो द एरिया इन विच अ कैमरा ट्रैप इज़ एबल टू डिटेक्ट द टारगेट थ्रू इट्स सेंसर। इसका जो सेंसर होता है वो कितने एरिया तक जो है एनिमल को डिटेक्ट कर सकता है, वी कॉल इट डिटेक्शन जोन। द डिटेक्शन जोन इज़ नॉट नेसेसरीली इक्वल टू द कैमरा फील्ड ऑफ व्यू, दैट इज़ द एरिया इंक्लूडेड इन द एक्चुअल फोटोग्राफ। अब एक्चुअल फोटोग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि कैमरा इस सारे एरिया के अंदर जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट या एनिमल होगा उसको डिटेक्ट करेगा, नहीं। डिटेक्शन जोन स्पेसिफिक एरिया होता है किसी भी कैमरे का। अब ये वेरी करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जितना पिक्चर का एरिया हो तो वो सारा एक्टिव जोन होगा। वो डिटेक्शन जोन उसके अंदर एक पर्टिकुलर जोन होगा, वो हम पढ़ते हैं। डिटेक्शन जोन वेरी बिटवीन कैमरा ट्रैप मॉडल्स। कैमरा ट्रैप मॉडल जो है वो डिपेंड करता है, बहुत सारे कंपनीज़ के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, तो सब डिफरेंट जो है वो उनके डिटेक्शन जोन होते हैं। फॉर एग्जांपल, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू एक्चुअली करस्पॉन्ड्स टू कैमराज डिटेक्शन जोन। तो पूरे एरिया में कुछ एरिया ऐसा होगा जो कि डिटेक्शन जोन होगा। सम मॉडल सेंस थ्रू अ कॉनिकल शेप डिटेक्शन जोन। कॉनिकल शेप, तिकोन शेप एक जोन होता है लेंस के सामने, जिसमें वो क्या करेगा, एनिमल्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करे। वाइल अदर्स थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल बैंड्स एंड वर्टिकल एक्सिस जोन्स। कुछ में कॉनिकल शेप्स, कुछ में हॉरिजॉन्टल बैंड्स। हम अभी जाके पढ़ते हैं कि किस तरह से वो इसको डिटेक्ट करते हैं, हाउ डिटेक्शन जोन वर्क्स, और इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज उसकी क्या है। एडवांटेज उसकी ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम इसको आगे ज़रा पढ़ते हैं। इफ़ एन एनिमल डज नॉट क्रॉस द सेक्टर्स shown below from 1 to 6 while moving within the pink or warm zone, the PIR passive infrared sensor will not detect movement। इधर देखें, दिस इज़ डिटेक्शन जोन ऑफ अ कैमरा मॉडल, और इसमें हॉरिजॉन्टल बैंड्स जो आपको पिंक कलर में शो हो रही हैं, ठीक है, यहाँ इसको शो किया गया है इन पिंक कलर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पिंक कलर है, दैट एरिया इज़ बेसिकली डिटेक्शन जोन, और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आप जो एक्टिव एनिमल्स हैं जिसको आप पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं, ठीक है, जिनकी मूवमेंट और जिनको आप जो है फोकस, जो आपका फोकल एनिमल है उस पे आप इसको टारगेट करते हैं, तो वो अगर इसके सामने से
नहीं गुजरता तो वो डिटेक्ट नहीं होगा। यहाँ एग्ज़ाम्पल में जो जोन्स हैं इसको सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। यू कैन सी के जो फर्स्ट ये जो ऊपर वाला हॉरिजेंटल बैंड है दिस इज़ डिटेक्शन जोन। तो इसमें एक एनिमल इंटर हुआ है विच इज़ इन द सेक्टर 6। आप देख सकते हैं कि एंटेलोप है या कोई भी एंगुलेट कोई स्पीशीज़ है, आप देख सकते हैं वो इसके अंदर इंटर हुई है। तो अब कैमरा ट्रिगर हुआ है, ठीक है, कैमरा ट्रिगर हुआ है तो उसकी वजह से सेक्टर 1 के अंदर दूसरा कोई एंटेलोप है वो भी उसमें क्या कहते हैं उसको बाय चांस कैप्चर हो गया है। अगर ये एनिमल इस जोन को एंटर ना करता तो ये वाला एनिमल भी कैप्चर ना होता बिकॉज दैट डू नॉट फॉल इन द डिटेक्शन जोन। इसी तरह सामने जो ये क्लोजर एक एनिमल आया हुआ है तो ये भी जो है एक नीचे वाले डिटेक्शन जोन में फॉल कर रहा है। तो इन दोनों की वजह से ये ट्रिगर हुआ है कैमरा। और अगर बैकग्राउंड में कोई पिक नज़र वो कोई एनिमल आ भी जाता है, कैप्चर हो भी जाता है, तो दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट एनिमल बट दोज विच आर डिटेक्टेड इन द डिटेक्शन जोन। ये आप चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही डिटेक्शन, ये डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट कैमराज होती हैं। आप इसको जनरल भी रख सकते हैं फिर आप, लेकिन उसकी डिसएडवांटेज फिर ये है कि उसमें वो जनरली पूरे एरिया को कवर करेगा लेकिन वो आपके जो फोकस एनिमल है उस पर फोकस नहीं करेगा और उसमें फिर पिक्चर क्वालिटी और बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ है उसके अंदर। लेकिन ये जो डिटेक्शन जोन आप डिसाइड करते हैं इसके लिए आपको ये करना होता है कि एनिमल को आपने एक क्या करना होता है, एक पॉइंट पे जिसको हम कैमरा स्टेशन आगे जाके कहेंगे, कैमरा स्टेशन जो विजिबल एरिया है उसमें एक पॉइंट पे हम कोई अट्रैक्टेंट केमिकल डालते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स उसके लिए इसको हम बेट कहते हैं या ल्यूर कहते हैं, ठीक है। तो उसकी तरफ एनिमल को अट्रैक्ट होके उसकी तरफ आना पड़ता है। जब वो आ जाता है तो वो बेट हमने सेट किया होता है डिटेक्शन जोन के अंदर, तो एनिमल अट्रैक्ट होके डिटेक्शन जोन के अंदर खुद ब खुद आ जाता है तो कैमरा उसको कैप्चर कर लेता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द डिटेक्शन जोन। और ये डिटेक्शन जोन जो हैं, डिटेक्शन जोन टाइप कैन बी सेलेक्टेड इन सम ब्रांड्स प्रायर टू परचेज। फॉर एग्जांपल द रेकोनिक्स प्रोफेशनल रेंज ऑफर्स 2 ऑप्शंस, नैरो और वाइड। इसी तरह कुछ मॉडल्स हैं जैसे ल्यूपोल्ड RCX2 में डुअल सेंसर टेक्नोलॉजी है। दिस अलाउज द यूज़र टू सी द सिलेक्शन जोन to set the detection zone to either 10 degrees पे अगर आप इसको फिट करेंगे सो इट इज़ आइडियल फॉर फोकसिंग ऑन अ बेट स्टेशन। जैसे मैंने कहा कि किसी एनिमल को आप पर्टिकुलरली एक स्पीशीज़ को, फॉर एग्जांपल कार्निवोर्स को आप टारगेट कर रहे हैं तो यू हैव टू पुट कास्टर ल्यूर। कास्टर ल्यूर इज़ बेसिकली डिज़ाइंड फॉर कार्निवोर्स, तो जो कि बेसिकली स्कंक और कुछ दूसरे एनिमल्स के एनल ग्लैंड्स को चॉप करके उससे वो प्रोड्यूस किया जाता है, विच प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग पंजिंग स्मेल ऑफ द फ्लैश। और उसमें फिर तो उसके लिए आप 10 डिग्रीज़ पे उसको सेट करते हैं। इफ़ यू सेट इट ऑन 45 डिग्रीज़ वेयर अ वाइड डिटेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, तो उसमें फिर डिटेक्शन वाइड हो जाती है, फिर स्पेसिफिक डिटेक्शन नहीं करता, थ्रू आउट द रेंज ऑफ द पिक्चर वो डिटेक्शन करेगा। सो दोनों की अलग अलग एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस हैं। टाइप्स ऑफ कैमरा ट्रैप सर्वेज। अच्छा, कैमरा ट्रैप हमने 2 टाइप्स पढ़े, पैसिव इंफ्रारेड एंड एक्टिव इंफ्रारेड। तो पैसिव इंफ्रारेड और एक्टिव इंफ्रारेड में बेसिक डिफरेंस आपने जान लिया कि पैसिव इंफ्रारेड में जब एनिमल की मूवमेंट होती है तब कैमरा एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये एक्टिव नहीं होता, पैसिव होता है। एनिमल को जब एनिमल की डिटेक्शन होती है और वो कैसे होती है, वो होती है थ्रू टेम्परेचर एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल डिटेक्ट अ डिफरेंशियल इन हीट एंड मोशन बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड टेम्परेचर। यहाँ पे 2 चीज़ें वर्क करती हैं। नंबर 1 हीट एंड मोशन। हीट क्या है, एज यू नो दैट इंफ्रारेड इज़ हीट सेंसिटिव, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स जो है वो हीट सेंसिटिव होती हैं एंड मोशन
एज वेल, ठीक है। तो हीट और मोशन, तो एनिमल के बॉडी की हीट जो है वो ज़्यादा होती है, तो इंफ्रारेड उसको और सराउंडिंग के साथ, बैकग्राउंड के साथ उसको कंपेयर करके तो इट डिटेक्ट्स अ टेम्परेचर डिफरेंशियल और हीट डिफरेंशियल, और इसी के साथ मूवमेंट को भी। तो ये इंफ्रारेड की क्वालिटी ये है कि ये हीट प्लस मोशन को यूज़ करके एनिमल की मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। सो दैट वाज अबाउट डिटेक्शन जोन। अब टाइप्स ऑफ कैमरा ट्रैप सर्वेज। कैमरा ट्रैप सर्वेज आर नॉट जस्ट फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, दिस इज़ नॉट समथिंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी थिंग, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट जस्ट टू टेक पिक्चर्स, बट ऑब्वियसली साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन तो है, एनिमल का एक क्लियर एविडेंस है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइंस सर्वे और अदर सेकेंडरी डाटा। बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो कैमरा ट्रैप्स है ये बेसिकली आप इंस्टॉल करते हैं फॉर मैनी डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स। तो थ्रू आउट दैट टाइम पिक्चर की टाइमिंग वो सब कुछ जो है मैटर करता है, और डिफरेंट सर्वे डिज़ाइंस पर हम बनाते हैं। तो उस हिसाब से सबसे पहले हम कैमरा ट्रैप्स को यूज़ कितने टाइप्स में कर सकते हैं, ठीक है। सर्वेज कंडक्ट करते हैं हम कैमरा ट्रैप्स की, तो वो कितने टाइप की होती है और क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं। तो नंबर 1 इज़ प्रेजेंस एब्सेंस। सिंपल, हम एनिमल की प्रेजेंस और एब्सेंस चेक करते हैं किसी एरिया में, सो हम उसमें वहाँ पे कैमरा ट्रैप्स के सर्वे कंडक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू चेक presence absence. One of the simplest measures that camera traps are used in detecting the presence or absence of species. It is often reported as the total number of events of a species over a set period of time and number of camera traps. Trap nights, capture events, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो ये है कि डिटेक्शन रेट, सबसे पहले डिटेक्शन रेट क्या है किसी एनिमल की एब्सेंस और प्रेजेंस को जानने के लिए वी नीड दैट। सो डिटेक्शन रेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कैप्चर इवेंट्स, वी कॉल इट इवेंट्स और कैप्चर इवेंट्स ऑफ अ स्पीशीज डिवाइड बाय डिप्लॉयमेंट टाइम। एक स्पीशीज़ है उसका कैप्चर इवेंट क्या है कि एक स्पीशीज़ कैमरे के सामने डिटेक्ट हुई और वो उसी मोमेंट में वो जितना टाइम उस कैमरे के सामने गुजारेगा, दैट एनिमल दैट विल बी अ सिंगल कैप्चर इवेंट। वो एनिमल जाके दोबारा आएगा तो दूसरा कैप्चर इवेंट। कैप्चर इवेंट वो टाइम है जिसमें कैमरा एक्टिवली पिक्चर्स लेता रहता है किसी एनिमल की जब तक वो वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। फिर वंस दैट एनिमल लीव्स दैट प्लेस एंड अनदर एनिमल कम और द सेम एनिमल कम्स बैक, तो दोबारा से कैमरा एक्टिव हो जाता है। सो दैट इज़ अ सेकंड कैप्चर इवेंट, ठीक हो गया। देन डिवाइडेड बाय डिप्लॉयमेंट टाइम। डिप्लॉयमेंट टाइम क्या है कि कैमरा डिप्लॉयमेंट, एक कैमरा आपने लगाया हुआ है कितने टाइम के लिए, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 1 मंथ, 2 मंथ, ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। स्मॉल के लिए हम कम टाइम के लिए लगाते हैं, लार्जर कार्निवोर्स और लार्जर मैमल्स के लिए, रेयर स्पीशीज़ के लिए फिर हम ज़्यादा टाइम के लिए लगाते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी डिटेक्ट डिटेक्शन रेट। सो दिस इज़ फॉर प्रेजेंस एब्सेंस। और डिप्लॉयमेंट टाइम हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय नंबर ऑफ कैमरा ट्रैप नाइट्स। कैमरा ट्रैप नाइट्स क्या है, जितने आपने कैमरा ट्रैप्स लगाए हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 कैमरा ट्रैप्स लगाई हैं, सो दे आर बेसिकली डिफरेंट ट्रैप नाइट्स, ठीक है। फिर आप उसके साथ मल्टीप्लाई करते हो कैप्चर इवेंट्स को और फिर उसको टोटल ट्रैप नाइट्स या टोटल कैमरा ट्रैप्स में मल्टीप्लाई करते हो, सो वी गेट डिप्लॉयमेंट टाइम एंड डिटेक्शन रेट, टोटल नंबर ऑफ capture events divided by deployment time. So this is for simple presence absence data. Population trends हम देखते हैं कि जैसे हमने इंडेक्स सर्वेज की बात की, इंडेक्स काउंट और इंडेक्स मेथड, जिसमें हम एक टाइम पे पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, फिर इसी तरह दूसरे सीज़न में, तीसरे सीज़न में और ईयर्स में, तो कमिंग ईयर्स में फिर पॉपुलेशन ट्रेंड्स हम देखते हैं। इसी तरह कैमरा ट्रैप सर्वेज भी उसी तरह पॉपुलेशन ट्रेंड्स को देखने के लिए यूज़ हो सकती हैं। एनिमल एक्टिविटी, एबंडेंस एंड डेंसिटी। एनिमल्स की एक्टिविटी, उनकी एबंडेंस, डेंसिटी, एनिमल बिहेवियर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कैमरा ट्रैप सर्वेज, जो कि आप पिछले हमने जो क्लासिकल मेथड्स पढ़े उसमें आप
ये नहीं कर सकते एनिमल बिहेवियर को आप, क्योंकि एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए आपको फील्ड में 24 आवर्स आपको फील्ड में रहना है, उनको स्टडी करना है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो यहाँ पे कैमरा ट्रैप सर्वेज में हमें इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि एनिमल बिहेवियर को हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें क्या क्या है एनिमल बिहेवियर में, कैमरा ट्रैपिंग हैज़ इंक्रीज्ड और एबिलिटी टू स्टडी द बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स अंडर नेचुरल कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली जो एनिमल बिहेवियर स्टडीज़ हम लेबॉर्ट्री में कंडक्ट करते हैं तो वो हमारे पास उस तरह के रिज़ल्ट नहीं देती, बिकॉज वो हम एनिमल्स को आर्टिफिशियल और लेबॉर्ट्री कंडीशन में स्टडी कर रहे हैं, जो कि बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम नेचुरल कंडीशन। सो द एबिलिटी टू, और यहाँ पे हम कैमरा ट्रैपिंग टेक्निक में हम नेचुरल कंडीशन में एनिमल का बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। सो द एबिलिटी टू सेट द डिवाइस इन सच अ वे दैट अनबायस्ड डेटा आर गैदर्ड ऑन हाउ एनिमल्स बिहेव ड्यूरिंग देयर डेली साइकिल्स इज अनप्रेसिडेंटेड। यूजिंग कैमरा ट्रैप्स bridges and knows sorted behavioral and activity patterns into 6 categories। अच्छा, ये वो एनिमल बिहेवियर्स हैं जो हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू कैमरा ट्रैप। दिस इज़ सर्कैडियन रिदम्स, नेस्ट प्रेडेशन, और जिसको हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म भी कहते हैं, जिसमें हम एक एनिमल दूसरे एनिमल के नेस्ट्स में से प्रेडेशन करता है। फोरेजिंग, निश पार्टीशनिंग, निश यू नो the part of the habitat in which animal play active role। तो the active role played by an animal or a species is called niche। तो जो animals जिस एरिया में एक्टिव होते हैं, जिस टाइम में एक्टिव होते हैं, उसको niche कहते हैं। उसकी partitioning and social systems, habitat use and refugia और habitat use, habitat selection एक अलग दुनिया है, ठीक है, एक टेक्निक है, एक फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, जिसमें हम हैबिटेट, एनिमल के हैबिटेट यूज़ और सिलेक्शन को फोकस करते हैं, और रिप्रोडक्शन। इस तरह एक्टिविटी पैटर्न्स है। एक्टिविटी पैटर्न्स कौन से एनिमल्स किस टाइम एक्टिव होते हैं, लाइक नॉक्टर्नल एनिमल्स, डायर्नल एनिमल्स, क्रिपस्कुलर एनिमल्स, ठीक है। क्रिपस्कुलर आर दोस्त जो कि डान और डस्क के टाइम में एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल जो कि मिड नाइट में एक्टिव होते हैं, एंड डायर्नल जो कि मिड डे में एक्टिव होते हैं। सो सच काइंड ऑफ कैमरा ट्रैप सर्विस कैन बी कंडक्टेड। रिसर्च एप्लीकेशंस क्या है, अभी जो हमने पढ़े जितने मेजर टाइप्स, तो उसमें देखिए फॉनल चेक लिस्ट है कि हम एक एरिया का चेक लिस्ट बनाते हैं। चेक लिस्ट मीन के फॉनल चेक लिस्ट लाइक एक एरिया में हम सिंपल ये स्टडी कंडक्ट करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी एनिमल्स पाई जाती हैं, तो उनकी चेक लिस्ट बनाने के लिए हम इलूसिव और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए, तो ये जितने भी रेफरेंसेस यहाँ पे गिवन है थ्रू आउट द लेक्चर, ये इसका मकसद ये है कि ये स्टडीज़ इन्होंने कंडक्ट की हुई हैं, ये पब्लिश्ड स्टडीज़ हैं। रिलेटिव एबंडेंस एस्टिमेशन, वही रिलेटिव एबंडेंस यू नो वेरी वेल यूजिंग कैमरा ट्रैप फोटोग्राफिक रेट्स, कि एक एरिया के रेट्स को हम दूसरे एरिया के साथ कंपेयर करते हैं। एबंडेंस एंड डेंसिटी एस्टिमेशन ऑफ इंडिविजुअली रिकॉग्नाइजेबल स्पीशीज़, कैप्चर मार्क रिकैप्चर मेथड्स, नॉन रिकॉग्नाइजेबल स्पीशीज़, फॉर एग्जांपल लेपर्ड्स के ऊपर आपके पास पीलेज पैटर्न मौजूद होता है, तो वो इंडिविजुअल्स आप उससे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो, तो उसमें फिर हम कैप्चर मार्क रिकैप्चर मेथड्स यूज़ करते हैं, उसमें हम दोबारा हम उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। नॉन रिकॉग्नाइजेबल स्पीशीज़ जिसमें कोई बॉडी पैटर्न्स नहीं होते, सो वी यूज़ रैंडम इनकाउंटर मॉडल्स। इसी तरह ऑक्यूपेंसी एस्टिमेशन है, ये सारे रिसर्च एप्लीकेशंस हैं अदर, जो कि कैमरा ट्रैप स्टडीज़ को यूज़ करके इतने सारे आप एप्लीकेशंस और डेटा रन कर सकते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग है, एनालिसिस ऑफ हैबिटेट एसोसिएशन, यू डोंट नीड, ये सारे अलग अलग रिसर्चेज हैं, इनमें एक एक टॉपिक पे अलग अलग PhDs होती हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े रिसर्चेज जो हैं वो इनमें से एक एक टूल्स और टेक्निक्स पे होती हैं। एनालिसिस ऑफ हैबिटेट एसोसिएशन, रेंज ऑफ स्पीशीज स्पेसिफिक और फोकल पर्पस स्टडीज़ ऑन एक्टिविटी पैटर्न, डाइट, रिप्रोडक्शन, बिहेवियर, डिटेक्टिंग मार्किंग साइट्स, मॉनिटरिंग किल साइट्स फॉर यूरेशन लिंक्स, डिटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विद abnormal phenotypic characteristics such as in wolves, monitoring or wildlife crossing or green bridges. Depends on your research question. Whatever your research question may be, you can use camera trapping studies for the following
research applications. So you just need to know the basics about that, no need to go into that detail. Camera trap installation and survey design के बारे में अगर हम पढ़ें तो वो ये है कि बेसिक कैमरा ट्रैप इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल क्या है, कि क्या बेसिक चीज़ें आपने देखनी है। वैसे तो उसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं, बट हम सिंपल इसमें पढ़ेंगे कि सर्वे डिज़ाइंस वेरी कंसिडरेबली थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो डिपेंड करता है एरिया पे। उसमें हम मेजर दो कैटेगरीज पढ़ेंगे, फॉर रेन फॉरेस्ट एंड रगेड माउंटेन रेंजेस। सो रेन फॉरेस्ट में हम क्या करते हैं कि रेन फॉरेस्ट में ये स्टडी कंडक्ट हुई है ओब्रियन 2011 में, और उन्होंने रिकमेंड किया है कि अप्रॉक्सीमेटली 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है उसके लिए हम कैमरा ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। लाइक इट कोइंसाइड्स और इट ओवरलैप्स विद माय स्टडी इन मार्गला हिल्स नेशनल पार्क, जो कि है 170 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। और एक रेन फॉरेस्ट में तो नहीं आता, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, बट इट इज़ मोर रिलेटेड टू रेन फॉरेस्ट देन अ रगेड माउंटेन रेंज। सो वहाँ हमने इतना मोस्टली यही प्रोटोकॉल फॉलो किया था फॉर दिस। और इसमें क्या है, their design is based on camera trap per 2 square kilometer, पर 2 स्क्वायर किलोमीटर हर 2 किलोमीटर के एरिया में हमने एक कैमरा इंस्टॉल करना है, यूजिंग 30 to 35 कैमराज इन टोटल एरिया। ठीक है, आई यूज़ 30 कैमराज इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो डिपेंड करता है आपके स्टडी डिज़ाइन पे। ज़रूरी नहीं कि आपने फ़िक्स जो है 100% वही फॉलो करना है, आपने अपना जो है अपने हिसाब से डिसाइड करना है। कैमरा ट्रैप्स आर रेंडमली लोकेटेड इन दिस प्रोग्राम एंड आर ऑलवेज ऑन गेम ट्रेल्स एट हाइट ऑफ 20 to 50 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ये जो आप देख रहे हैं ये पिक्चर है, इट्स फ्रॉम माय मार्गला हिल्स स्टडी। और आप देख सकते हैं कि एक रॉड होता है जिसमें हम कैमरा को फिक्स करते हैं। आपने प्रैक्टिकल में स्टडी किया था पिछले हमने हमारे कोर्स में जो प्रैक्टिकल, तो उसमें हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था हाउ टू इंस्टॉल इट। तो कैमरा इंस्टॉलेशन आपको पता है। यहाँ पे हम सिर्फ प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं कि ग्राउंड से आपने रखना है 20 to 50 सेंटीमीटर अबव द लेवल, ग्राउंड लेवल। ठीक है, और टू एक्सटेंड बैटरी लाइफ दे सेट 1 मिनट डिले। अच्छा, डिले हम सेट करते हैं। डिले ये है कि एक कैप्चर इवेंट हो जाता है, उसके बाद कैमरा जो है वो इनएक्टिव रहता है इतने टाइम के लिए, बिकॉज टू एक्सटेंड बैटरी लाइफ, बैटरी को सेव करने के लिए हम डिले टाइम सेट करते हैं। और 30 डेज़ के लिए आप लगाते हैं। मैंने 15 डेज़ के लिए लगाया था, बिकॉज दैट वाज अ जनरलाइज्ड स्टडी अबाउट मीडियम, स्मॉल एंड लार्ज मैमल्स। अगर आप इसको फोकस करते हैं तो फिर आपने अपने तौर पे इसको डिसाइड करना होता है, बट दिस इज़ द बेसिक प्रोटोकॉल फॉर रगेड माउंटेन रेंजेस। जैसा कि हिमालयन रेंजेस है और हिमालयन माउंटेन रेंजेस है जो कि बहुत रगेड एरियाज़ हैं, रेन फॉरेस्ट नहीं है, तो उसमें आप बेसिकली क्या करते हैं कि 30 to 45 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ये आप फिर रीड कर लें। 20 सेकेंड्स डिले टाइम, जो कि 3 to 5 मिनट्स डिले तक भी हो सकता है, बिकॉज एरिया ज़्यादा है। एंड डिप्लॉयमेंट टाइम इंपॉर्टेंटली 40 to 60 डेज़ हैं। तो 40 to 60 डेज़ में आपके बैटरी लाइफ डेड होने का ख़तरा है। तो आप क्या करते हैं कि यू सेट द डिले from 20 seconds to 3 to 5 minutes। देख लाइक एक कैमरा इवेंट हो गया, एक कैप्चर इवेंट के बाद कैमरा इतने टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है। सो वी कॉल इट अ डिले टाइम। सो दीज आर द 2 बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉर रेन फॉरेस्ट एंड रगेड माउंटेन्स। दिस इज़ from my study of Margla Hills National Park, 170 square kilometer, 30 camera traps installed in 1 square kilometer area, and we covered 30% of the national park by this method. So डिपेंड करता है आपके रिसर्च क्वेश्चन पे, आपके एरिया पे, आपकी स्पीशीज़ पे एंड आपके रिसोर्सेज पे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। ठीक हो गया? ओके, दैट वाज अबाउट बेसिक्स ऑफ कैमरा ट्रैपिंग, इट्स एप्लीकेशंस। और अगर हम देखें कि हाउ इट शोज़ द रिजल्ट्स, तो इम्पोर्टेंट है कैमरा ट्रैप इंस्टॉलेशन। तो कैमरा ट्रैप इंस्टॉलेशन के हवाले से हम थोड़ा सा देखते हैं फ्रॉम माय रिसर्च वर्क, जो कि हमने जो जिस तरह से कैमरा इंस्टॉल किया था
तो उसमें थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, क्योंकि फील्ड सर्वे ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबल नहीं हो सकी, सो हमें इसी पे काम चलाना पड़ेगा, वीडियोस पे। सो दिस इज़ हाउ कैमरा इज़ इंस्टॉल्ड, और हम उसमें किस तरह से उसको ट्रेल में पोटेंशियल साइट पे किस तरह से इंस्टॉल करना है। मेरा लैपटॉप स्लो है, सो इट विल बी टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। ओके, जब तक ये लगता है हम ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। नथिंग दैट रॉकेट साइंस इन दिस टेक्निक्स, बट है इसके अंदर, लेकिन अभी अच्छा ये एक आप देख सकते हैं एक ट्रेल। अच्छा, यहाँ इफ़ यू लुक एट द कैमरा, हमने इंस्टॉल किया है इसको इन ट्रेल पे। दिस इज़ द ट्रेल जो एनिमल्स फॉलो करते हैं, कार्निवोर्स यही ट्रेल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये कैमरा इंस्टॉल्ड है इधर कॉर्नर पे। सो यू हैव टू लुक इनटू द ट्रेल, और उसके डायरेक्शन में आपने इसको सेट करना होता है ताकि एनिमल उसके कमिंग डायरेक्शन में उसको क्लियरली उसके डिटेक्शन जोन में एनिमल आ जाए, ठीक है। फिर आप उसको इंस्टॉल करने के बाद वॉक टेस्ट करते हैं हम टू इन ऑर्डर टू कंफर्म द डिटेक्शन ज़ोन के आया डिटेक्शन ज़ोन जो है वो एक्टिव है या नहीं। तो हमने वॉक टेस्ट और जो रेड लाइट ब्लिंकिंग आपको बताई थी, तो उसी मेथड को फॉलो करके हम ये वॉक टेस्ट करते हैं इस तरह से टू चेक द डिटेक्शन जोन। और सो दिस इज़ हाउ यू चेक द camera station, or we call it camera station. And this is how it gives you the results. Let's see, for example, we had a leopard detected, और यहाँ इसको आप देख सकते हैं कि ये दिस एनिमल इज़ लाइक रियल टाइम डिटेक्शन। और कैप्चर इवेंट में इतने पिक्चर जो है हमारे पास डिटेक्ट हुई हैं, एंड व्हेन वी सी इट, सो इट्स लाइक अ रनिंग मोशन पिक्चर। This is like investigating the camera, or now it goes back. So this is common leopard, Panthera pardus. It is located in Magla Hills, और हमारे पास कुछ कैमरों में जो डिटेक्ट हुए थे। So this is how it gives you pictures without any shutter sound, without any flashlight, and this is that active infrared second type of the cameras. Or that was about camera trapping and its different modifications and its different types and its protocol. There is a lot to know about camera trap. We don't have much time for that, so that was enough for our lecture.